ma'am is our online monitoring cell today's faculty member. She's going to monitor your lecture also. Okay. So those who just now join it, I would like to welcome JSU student. They are going to attend a lecture from today's onward. And before that, I would like to tell one thing to JSU student that already I cover most of the topic of related to object-oriented software engineering. I'm right now on the third unit of this chapter. Today I'm going to take activity diagram concept. As of the your syllabus is concerned, is anyone can please unmute yourself and tell how much syllabus you have till now completed, taken by ma'am, Josna ma'am. Is anyone can able to tell? Is your third unit also complete? JSU student, can anyone please speak? JSCU, Jayawant Sawan College of Engineering student, please anyone can please speak. How much syllabus you have completed till now as of this subject is concerned? अरे कोणीतरी बोला, तुमचा सिलेबस आतापर्यंत किती झालेला आहे? JSC स्टुडंटला विचारतोय. एक मिनिट सर सांगतोय. ते सिलेबस बघून सांगतो एक मिनिट. आपला तिसरा चॅप्टर चालू आहे सध्या. आय थिंक तिसरा चॅप्टर चालू असेल. हो चालू होता आमचा. ऍक्च्युली 1-2 लेक्चर्सला मी नव्हतो. सो थोडं 1-2 लेक्चरला मी नव्हतो मागच्या. सो जस्ट गिव्ह मी मिनिट. ओके, एक फक्त 5 मिनिट द्या. मी बरं ठीक आहे. तरी पण मी तुम्हाला सांगतोय की मी तुम्हाला नोट्स पाठवीन तुमच्या सरांच्या मार्फत. ओके. All NTC student, Narre Technical Campus student, I would like to tell one thing that due to some unavoidable circumstances, from today onwards, JSV, Jayawant Sawan College of Engineering or Hadapsar campus student also will attend my lectures. Okay, and both college student will attend this lecture now onwards from whenever we have a schedule for this timetable. Okay, as of timetable is concerned, and I think I'm going to forward the link to Shah sir, and Shah sir will notify to other students of the students of MCA first year JSV. Okay, so I'm going to start the session. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah, we are going to start the activity diagram. Okay, what is that? Okay. Just like you mentioned, it's one of the diagram of UML diagram, and it's very important diagram as of the system is concerned. It's just like a flowchart kind of diagram where it represents the flow from one activity to another activity. What is that? It is an activity diagram which just like or basically like look like a flowchart, and it which represent from one activity to another activity. Okay, so the control flow of one operation to another operation through the activities which are sequentially or branch wise or concurrent wise, they are attached to each other. Okay, so they have a different element, just like mention fork and join. We will discuss this in later part of this session. Okay, the main purpose of this activity diagram is like another flow diagram which is similar to that. It captures the dynamic behavior of the system. Okay, what is that dynamic behavior? That means if I'm going to enter something over in my software, it's going to rectify these things in my software. Suppose I'm going to enter my name, or I'm going to change my mobile number, or I'm going to enter my email ID or address, I'm going to change it. These are the dynamic behavior from my end. Okay, so I'm going to enter something in my system, then this is a dynamic behavior of the system. Okay, the static pages, just like the information pages, these are the static behavior of the system. But anything I'm going to enter something in my existing system, and I'm going to get the result from it, just like I would like to search anything from my system, just like
suppose we have that kind of case study for railway reservation, airline reservation, how much the flight from one end to another end. So I can search that. Okay, so that is a dynamic behavior of the system. Okay, so what is that? The other diagram, just like the object diagram or a class diagram or use case diagram, which shows the flow from one object to another, but in activity diagram, it shows the message flow from one activity to another activity. Okay, it's not shows the messages from object to object. It shows the activity, or it shows the message flow from one activity to another activity. This is only just a little bit of difference for that. You can say it's a dynamic behavior. It captures the dynamic behavior of the system. You can say it shows the message from one end to another end through the activities. Okay, and these are some purposes which relevant to that why we draw the activity diagram. Okay, so what that it gives the flow of the system first of all, as of the activities of the system is concerned. Okay, it gives the idea from one end to another end or one activity to another, how the sequences flow from each other. Okay, how they are parallel and branched or concurrent flow happen through the system. मतलब एक साथ पैरेलली कैसे हो रहे हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस कैसे हो रही है, ये हमें पता चल जाता है एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू. ओके, सो व्हाई वी यूज दिस एक्टिविटी डायग्राम? बिकॉज it gives the idea how the activities are flowing from one end to another end. Okay, it gives how different use cases and classes are in, or interfaces or components, they are going to collaborate each other. Okay, how different models workflow is going on, the behavior of the system is shows. Okay, the behavior of the system is shows. Okay, how the construct is runnable form. Okay, runnable means jo run ho raha hai. Okay, and it used as a incorporates for the forward and reverse engineering. We had a discussion about the forward, reverse and engineering. Okay, those who just now are from JSC student, I would like to tell that forward engineering means whatever the things happening from scratches to the final output, that is a forward engineering. Reverse engineering means that I have output, I know the system how is get it, but any problem arise in that output, I don't know how to solve that output. That means I have to go to reverse manner. जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे पुराने वक्त के जो प्रोजेक्ट होते थे मेन फ्रेम सिस्टम AS400 के, अगर उनका हमारे पास फिलहाल आउटपुट दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर हमने 25 साल पहले बनाया था और हमें पता है वो रन हो रहा है, वो चालू है, उसका आउटपुट हमें मिल रहा है, जैसे भी हम EXE रन करते हैं आउटपुट हमें मिल जाता है. लेकिन मान लो उसमें कुछ खामियां आ गई, उसमें मान लो एरर आ गए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो उनके कोड भी अवेलेबल, मान लो सिर्फ कोड ही अवेलेबल है, तो फिर आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है. लेकिन मान लो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये टेबल कौन से डेटाबेस का पार्ट है, इस टेबल में कितने फील्ड्स है, इस टेबल में कौन सी प्राइमरी की थी, कौन सी फॉरेन की थी, ये हमें कुछ नहीं पता. तो हमें क्या पता होना चाहिए था? फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए था. तो डिजाइन डॉक्यूमेंट मतलब मुझे पता है कि आउटपुट क्या है, लेकिन ये बना कैसे है ये नहीं पता, इसलिए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग दिखाना पड़ता है. मतलब हमें फिर से एक बार उल्टा जाना पड़ता है कि हमें लास्ट आउटपुट जैसे मिला है वो क्यों मिला और किसकी वजह से मिला है, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग. जैसे हम बोलते हैं कि SDLC साइकिल में फर्स्ट हम एनालिसिस, डिजाइन, फिजिबिलिटी स्टडी और फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे और फिर लास्ट में हमें आउटपुट मिलेगा. तो लास्ट में हमें आउटपुट ऐसे फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का कंसेप्ट. लेकिन मान लो मैंने आपके सामने सिर्फ सिस्टम दे दिया और बोले ये ऐसा है, अब बता तू, ये एरर आया गया तो अब तू बता तू एरर कैसे सॉल्व करेगा. जैसे आपने मान लो आप, हेलो, हाँ, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में लग गए, किसी जॉब में, और फिर आपको बिठा दिया एक सॉफ्टवेयर के ऊपर और बोल दिया कि भैया तेरे को करना इस पर कोडिंग, तुझे ढूंढना इसका एरर. आपको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप कैसे पढ़ोगे? आप फिर डिजाइन डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, है ना. आप उसका आप कैसे फ्लो था वो देखोगे, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा सिस्टम का कौन सा बिहेवियर था वो देखोगे, इनपुट क्या थे, फिर लास्ट में आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है वो आप डिजाइन डॉक्यूमेंट देखोगे. लेकिन वही चीज आपके पास नहीं रही तो आप कैसे करोगे? तो इसीलिए रिवर्स इंजीनियरिंग का कंसेप्ट एस्टेब्लिश किया जाता है बहुत सारे कंपनियों में. उसे फिर सपोर्ट का काम दिया जाता है और वो सपोर्ट के बलबूते वो फिर रिवर्स इंजीनियरिंग को बताते हैं. ओके, जैसे अगर मान लो कुछ खामियां आ भी गई तो उसका उल्टा करके, मतलब रूट कॉज एनालिसिस, हम जैसे उसकी जड़ तक जाना उस प्रॉब्लम के, उसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग तक बोल सकते हैं. ओके, तो यही डायग्राम हमारे काम आती है. अगर मान लो आपके सॉफ्टवेयर में ये सारे डायग्राम नहीं रही तो आप उसका ही निकाल सकते. ओके, सो इट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग.
हमें उल्टा जाना है शुरुआत तक, ओके। यहाँ पे हम फॉरवर्ड में पहले से आखिर तक हम जाते हैं। लेकिन आजकल अगर मान लो आपके सामने नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई 10-15 साल से बना हुआ प्रोजेक्ट है और उसके पहले के जो लोग उसे बनाते थे और आप वो रिटायर्ड हो चुके और आपको उसके ऊपर काम करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास वो सारे डिजाइन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो नहीं रहे तो आपको बनाने पड़ेंगे। तो बनाने के लिए फिर आपको सीखना पड़ेगा वो कोड में क्या लिखा था, वो इफ एल्स कंडीशन क्यों इस्तेमाल की गई थी, वो डू वाइल लूप क्यों लिया गया था, उसके फंक्शंस को कॉल क्यों किया गया था, और फिर उसकी जड़ तक जाना है। तब जाके आपको पता चलेगा हमें किस जगह का एरर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। It is just like a flow chart. Already I mentioned it, but it's not a flow chart. Okay, it just like the how different messages are carried out in several activities. Okay, so this is a diagram. Why we using this activity diagram? Okay. Then we have what is how to draw this diagram. Okay, so they mentioned that different kind of activities they are going to perform. Okay, it is not exactly the flow chart. They have some different capabilities. They have some branching, parallel flow, swim lanes also there. Okay, okay, we should understand the clear idea about it, why and how we are going to draw that activity diagram. But to draw or to have idea about it, we should know some little bit things related to activities. What is that activities? How these activities are associated with each other? What are the conditions and constraints related to draw that diagram? Okay, so before drawing, we should know this concept like activities, different association, different conditions and constraints. Okay, कंडीशन में कंडीशन और कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो कुछ चीजें होती है जो इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते, दैट इज कंडीशन। और कंस्ट्रेंट मतलब जो भी हमारे पास अगर मान लो कुछ चीजें बनाने भी पड़ रहे थे लेकिन उसके लिए हमें कुछ अप्रूवल्स नहीं थे या फिर हमारे पास साइन ऑफ नहीं था, तो दिस आर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आल्सो। ओके, कंडीशन और कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सो द रूल इज दैट whenever I'm going to draw this diagram, the diagram should have a meaningful name, should be given to each and every activity. हर एक्टिविटी को एक सही सटीक नाम देना है। ओके, कोई भी कैसे भी नाम नहीं सकता, मेरा नाम वगैरह नहीं दे सकता, ठीक है। तो उस डायग्राम को रिलेवेंट उस एक्टिविटी को देना। We have to find it out all the different constraint and we have to acknowledge different activity association. एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी के साथ कैसे एसोसिएशन है ये भी हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। मतलब मान लो ट्रांजैक्शन मॉडल और कस्टमर मॉडल के साथ कोई इंटरेक्शन है, तो जब तक हमारे कस्टमर मॉडल में कुछ एंट्री नहीं होती हम ट्रांजैक्शन मॉडल में उससे फ्लो नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे कंडीशन भी हमने डाल दी कि जिसका मिनिमम बैलेंस 1000 है उसी को हम सेविंग अकाउंट के लिए ओपन करने के लिए बना सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट कंडीशंस। ओके, अलग कंस्टेंट हो सकते हैं, जैसे हमने उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी भी गई थी तो वो क्यों दी थी हमने वो भी बताना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जिसका लिमिटेशंस उसके बैलेंस से ज्यादा हम दे रहे हैं, तो दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्टेंट्स हम बोल सकते हैं। ओके, कंपोनेंट डायग्राम निकालने के लिए जैसे मैंने बोला था कि एक्टिविटीज होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज दैट एक्टिविटीज, इसको इस सिंबल से बनाया गया है। एक रेक्टेंगल शेप है जिसका आउटर बाउंड्रीज वो 90 डिग्री में नहीं बना, उसको कॉनकेव या फिर उसको राउंडेड शेप में बनाया, ठीक है। जो एक्टिविटी लिखा हुआ है दैट्स एक्टिविटी इज रेक्टेंगल शेप बट दैट कॉर्नर आर नॉट exactly 90 degrees, they are in the rounded shape। okay, so what is that? The categorization of behavior of one into one or more actions are termed as an activity. What is that? The categorization of one or more actions is termed as, and in other words it can be said that activity is a network of nodes and connected by edges। तो ये हम बोल सकते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज का भी एक नेटवर्क है और वो सारे एक्टिविटी एक दूसरे के साथ एजेस से मतलब किसी जड़ से या किसी लाइन से या फिर किसी एज से वो जुड़े हुए हैं। ओके, सो it can contains different nodes, it can contains the edges also। okay, तो एक्टिविटीज को हम ये डायग्राम से या फिर इस सिंबल से हम दिखा सकते हैं। ओके, दूसरा है पार्टीशंस और स्विम लेन।
स्विम लेन, जैसे कहा गया है कि स्विम लेन को बोलते हैं इट्स अ क्लस्टर ऑफ ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज वन एलिमेंट as a one column or in a one row. It can be either vertical or can be a horizontal. Okay, so activity diagram हम इसी तरह से जब बनाते हैं तो स्विम लेन का एक थोड़ा सा हिस्सा उसमें रहता है, जैसे दो एक्टिविटी के बीच का पैरेलली हम कुछ अटैचमेंट कर रहे हैं, तो या फिर उसे हम हॉरिजॉन्टली भी अटैच कर पा रहे हैं। ओके, तो ये हम जब डायग्राम आगे देखेंगे उसके बारे में और पता चल जाएगा। ओके, सो टू इट इज यूज्ड टू ऐड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, पारदर्शिकता, दोनों एक्टिविटीज के बीच में जो पारदर्शिकता बोलते हैं हम, उस ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए स्विम लेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्विम लेन खास करके सीक्वेंस डायग्राम में बहुत ज्यादा पैमाने पे किया जाता है। ओके, सीक्वेंस डायग्राम में बहुत ज्यादा पैमाने पे किया जाता है। एक और चीज है फोर्क, fork and join. Okay, so what is that? Fork and join nodes generate the concurrent flow inside the activity. एक्टिविटी के अंदर की जो कॉन्करेंट फ्लो होता है उसे दिखाने के लिए हम बोलते हैं। और फोर्क मतलब क्या? अब फोर्क नोड कंसिस्ट ऑफ वन इनवर्ड एज, एक इनवर्ड एज आता है और उसके इनवर्ड एज से कई सेवरल आउटवर्ड एज मिलते हैं, मतलब वन इनवर्ड एज एंड सेवरल आउटवर्ड एज। ओके, सो जस्ट लाइक इट हैज वेरियस different decision parameters, you can say. So if you are going to look at this at the software point of view, data is received from the one inward edge, which can copy it, and we can split that message to different various outward or different various activities, we can say. Okay, so we can say it has a single inward and it has a multiple। एक ही इनपुट है, जैसे हमारा एम्पलीफायर बोलते हैं ना, एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है कि जब एक सिंगल वायर आता है तो एम्पलीफायर ज्यादा बैंडविड्थ से बहुत सारे लोगों को आउटपुट में देता है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब एक ही इनपुट है और सेवरल आउटपुट। ये डायग्राम देखो आप। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एक इनपुट है और उसके दो तीन से भी ज्यादा हम, अभी आप बोलोगे ये फोर्क, ये जो नाम है, आप कभी होटल में मसाला डोसा वगैरह खाते होंगे तो उसको आपको काटा और चमचा मिलता है। ठीक है, उस कांटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यस, फोर्क। बस अभी आपको ध्यान में आ जाएगा, जब भी आप एग्जाम में बात करोगे तो वो जो मसाला डोसा खाते हैं ना उसकी याद रखना फिर आप। ठीक है, उसको फोर्क बोलते हैं। तो फोर्क कैसे रहेगा? एक इनवर्ड और सेवरल आउटवर्ड। जब आप आपके दिमाग में बुलाओ चमचे को, वो फोर्क को लाओ, सॉरी वो कांटे को लाओ, तो वो कांटा ऐसे ही है। मान लो इसके ऊपर से और एक हमने निकाल दिया और एक चीज हमने निकाली और एक एरो निकाल दिया, तो कैसे वो हमारा कांटा छुरी जो बोलते हैं तो कांटे जैसा में हमारे बन जाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? फोर्क। तो आपको ध्यान में आ जाएगा फोर्क का मतलब कैसे होता है। ठीक है, उस चमचे को याद रखो। फिर एक बार बोल रहा हूँ, वो चमचे को या फिर वो कांटे को याद में लाओ। तो उसको निकालते कैसे? तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम उस कांटे को फोर्क ही बोलते हैं ना। करेक्ट? अरे समझ में आ रहा है क्या भैया? यस सर। यस सर। हाँ, और यही मैं पूछ रहा हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कोई चीज को ध्यान रखना है ना तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम। फोर्क मतलब वही चमचा काटा जो जो हम डोसा खाते हैं, तो उसी फोर्क को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इनपुट आ रहा है, सेवरल आउटपुट आ रहा है। अब इसको उल्टा करो, उस कांटे को थोड़ा उल्टा करो, मतलब ये ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्वाइन नोड्स आर अपोजिट ऑफ द फोर्क। ओके, ज्वाइन क्या हुआ? फोर्क का अपोजिट होगा। यहाँ पे लॉजिकल एंड परफॉर्मेंस हो रहा है, यहाँ पे सेवरल इनवर्ड एजेस आ रहे हैं, एक ही इनवर्ड नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इनवर्ड्स आ रहे हैं और उसमें से सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा है। ओके, एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो इसी कांटे या उसको उल्टा किया हमने, तो हमने उसको ज्वाइन किया। ये जो नाम है ज्वाइन, ये जो शब्द दिया हुआ है, इसी को आप थोड़ा सा ओके, ये जो शब्द है ज्वाइन, ये शब्द ही इसीलिए वो बना हुआ है। देखो आप दो चीजों को ज्वाइन करें, एक और दो, तो ज्वाइन करने के बाद ये जो सिंगल लाइन बनाई हुई, इसे हम जो ज्वाइन करने का जो नोड है उसे हम अटैच करें, फिर उससे हमारा एक लास्ट आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो ये दोनों तीनों चार पांच इससे ज्यादा
इनवर्ड एजेस को ज्वाइन कर पाता है। ओके, तो ये है ज्वाइन नोड्स। तो आपको शायद समझ में आ गया फोर्क और ज्वाइन का मतलब समझ में आ गया। ओके, जब डायग्राम निकालते हैं तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ओके, ज्वाइन एंड फोर्क। सो एक्टिविटी डायग्राम करने के लिए हमें कुछ नोटेशंस बनाने हैं। ओके, तो वो नोटेशंस क्या है, जैसे हमारे फ्लो चार्ट में होते वैसे ही है वो। पहली बात इनिशियल स्टेट है जिसको फील्ड सर्कल से बनाया गया है, पूरा काला। ओके, दूसरा है एक्शन, या फिर हम एक्टिविटी बॉक्स बोलते हैं या फिर एक्शन बॉक्स बोलते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसे रेक्टेंगल शेप में दिया गया, इट्स रेक्टेंगल शेप। उसके कॉर्नर्स हमने कैसे बनाया है, राउंडेड शेप, राउंडेड बनाया। वो 90 डिग्री में नहीं है, वो थोड़ा सा 75-85 डिग्री में बना हुआ। तो ये जो कॉर्नर वाला है, इसी रेक्टेंगल को हमने एक्शन बॉक्स में रिप्रेजेंट किया। ये है डायमंड शेप का ईंट का पत्ता जो हमारा बोलता है डिसीजन बॉक्स। ये सेम है, हमारे फ्लो चार्ट से रिलेवेंट करता है डिसीजन बॉक्स। फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट जैसा ही है, लेकिन इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बना, एक फील्ड सर्कल को और एक सर्कल से हमने बना दिया है। ओके, दैट इज अ फाइनल स्टेट। ये सिंपल हम जो फ्लो चार्ट बनाते थे उसी से रिलेवेंट है। ओके, तो ये डिफरेंट है। इनिशियल स्टेट क्या होता है इसके बारे में बताया गया है, जब भी मैं नोट्स आपको दूंगा आप पढ़ लेना उन्हें। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या, फाइनल स्टेट क्या, डिसीजन बॉक्स क्या होता है, और एक्शन बॉक्स, उसको रिप्रेजेंट करने के ये 4 अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। ओके, Yes, sir. ओके, वेयर टू यूज। ओके, just like other diagrams of UML diagram, it is also used it as of the system is concerned. Okay, what is that? Activity diagram is suitable for modeling the activity flow of the system. ये बहुत जरूरी है। तो अलग अलग एक्टिविटी के बीच का जो फ्लो है उसे जानने के लिए ये डायग्राम हमें बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम हो सकता है, मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग कंपोनेंट कैसे करते हैं ये भी हमें पता चलता है। तो एक चीज और है, इट कैप्चर्स द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ओके, इट कैप्चर्स flow of one system to another system also. Okay, it is like that. Okay, these system, ये जो सिस्टम होते हैं ये डाटाबेस भी हो सकता है, एक्सटर्नल क्वेरीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे अटैच करते हैं, ये इसके लिए हमें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा एप्लीकेशन में हमने एक्टिविटी डायग्राम बहुत बात डिस्कशन होता है कि हम हाई लेवल डिजाइन से लो लेवल डिजाइन तक जब हम मॉडल को डिकम्पोज करते हैं तो उस वक्त हमें इसका इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। सो इन दिस केस व्हाट इज दैट, एक्टिविटी डायग्राम कैन बी यूज्ड फॉर द फ्लो बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरा है हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये बहुत बड़ी चीज है, बिजनेस रिक्वायरमेंट जानना। बोलोगे बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, वही हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट। जब से मान लो मैंने आपको बोल दिया कि आपको लोन डिपार्टमेंट का लोन रिकवरी सेक्शन आपको देखने का है। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू चेक द लोन रिकवरी सेक्शन, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द, मतलब ईएमआई कैसे आपने कैलकुलेट किया हर बंदे का। मान लो जैसे कोविड क्राइसिस बीच में हो गया था, किसी लोगों का ईएमआई हमने स्टॉप किया था ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर, किसी लोगों का हमने ईएमआई कट किया था which is not getting from the customer side, so we cut their EMI. Okay, so on that basis how much tenure remains, मतलब मान लो किसी बंदे को होम लोन उसने 20 साल के लिए निकाला था, अब कोविड क्राइसिस में उसके 8 महीने का उसको मिल गया रिलेवेंट एक विंडो पीरियड। तो ये जो 8 महीने हैं वो उसको भरने के लिए जो 20 साल हमने दिए थे, क्या हम उसको 21वां साल दे सकते हैं क्या? Okay, what is that? You have to do the coding related to different scenario right now. It happens, the pandemic situation happened right now and the banking sectors are collapsing just because people are not paying their EMIs. आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर किस पर काम करते हैं, जैसे हम लोग कुछ लोग FDs निकालते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 और 6% होता है, हम लोग वहां पे पैसे जमा करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू जमा करते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस के थ्रू जमा करते हैं। अब ये सारा पैसा गवर्नमेंट या बैंक के पास आता है,
और उसके ऊपर उसे 6.5% या 7% ब्याज उन कस्टमर को देने पड़ते हैं। लेकिन बैंक का काम सिर्फ यही थोड़ी है कि पैसा लेना, वो काम है उनको लोन के हिसाब से देना। तो वो जो लोग पैसा मिलता है 6.5% के हिसाब से, वो 8.5% के हिसाब से बाय लोन मेथड वो उनको देते हैं। मतलब बैंक को 2% फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही तो है उनका बिजनेस, है ना। तो बैंक करने के लिए वापस सोशल वर्क के लिए थोड़ी बैठे वो, तो बिजनेस के लिए बैठे हैं। और ऐसे सिचुएशन में लोगों ने ईएमआई अगर पे नहीं किया, मतलब वो 8.5% से जो पैसा मिलता था, अभी उन लोगों को मैं कैसे दूंगा जो 6.5% से अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। मेरा 2% का लॉस जो प्रॉफिट मिल रहा था वो पिछले 8 महीने से बंद पड़ा हुआ। तो आप ऐसी सिचुएशन में बताओ कि मुझे वो 2% जल्द से जल्द मिलने चाहिए। इसके लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करें? व्हाट इज दैट? दिस इज माय बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। यू आई एम गोइंग टू order you as a SBI or as a Bank of India or as a RBI that make a software for me. If you are working in Infosys or TCS, I'm going to ask you that this is my business requirement. I want how to get the compound interest on that. Okay, so this is a different kind of scenario you get it, and on that basis you will draw the diagram of it. Okay, then you have to make the high level understanding of the project also. सिस्टम की फंक्शनलिटी आप जानना चाहोगे कि पहले हम कैसे करते थे, पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हमारा कैसे बढ़ रहा है और ये चेंजेस हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे लाए। ओके, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट एट ए लेटर स्टेज ऑल्सो। ऑब्वियसली जो बंदे को हमने 20 साल के लिए हमने लोन दिया था, वो अब 21वें साल में जा रहा है। मान लो साल के वक्त उसको रिटायर्ड हो गया, तो 21 साल में पैसे पैसे कैसे पे कर सकता है? तो किसी ने अगर लोन निकाला है 20 साल के लिए और 60 साल, जब वो उम्र की 60 साल तक चला जाएगा, तो ये 20 साल तक हो जाएंगे, फिर 21वें साल जब हम जाएंगे तो वो तो रिटायर्ड हो जाएगा, फिर 21वें साल में पैसे कैसे पे करेगा? तो ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हमारे लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, तो ये अंडरस्टैंड करना कि ऐसा सिनेरियो आया तो हम क्या करेंगे। तो ये इसी बलबूते हमारे फंक्शनलिटी कैसी चेंज होगी। मान लो उसी लोन के ऊपर किसी ने टॉप अप लोन डाल दिया। मान लो किसी ने कुछ 25 लाख का लोन निकाला था, अब तक उसने 15 लाख का लोन दे चुका है, अभी उसको सिर्फ 10 लाख देने हैं, 10 लाख का लोन पे करना बाकी है। लेकिन उसके घर में उसको कुछ फर्नीचर बनाने हैं, उसके घर में कुछ डेकोरेशन करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, और उसके लिए उसे और 5 लाख का लोन चाहिए। मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज माय सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। मतलब मुझे टॉप अप देना पड़ेगा उस बंदे को जो अब तक, और वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, वो आराम से पे कर रहा है और पैसे दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में मेरा सिस्टम की फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है। ओके, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट ऑन दैट बेसिस। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स में। ओके, ये एक ही बंदे के लिए नहीं। मान लो आपके पास एसबीआई जैसे क्लाइंट के पास करोड़ों लोग हैं जिन्होंने लोन निकाला हुआ है। ये तो मैं सिर्फ आपको, भाई मेरे स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रैचेस मत डालो, ठीक है। कोई जो कर रहा होगा तो यहाँ पे और किसी ने किया हुआ है। ओके, तो एनोटेशन जो आपको निकाल रहे हैं वो निकाल दो आप आपके सिस्टम से। ओके ओके, व्हेन टू यूज दिस एक्टिविटी डायग्राम। हम एक्टिविटी डायग्राम को कम इस्तेमाल करेंगे। काय माझ्या स्क्रीनला तुम्ही काय स्क्रॅचेस करताय? एनोटेशन का बरं टाकताय तुम्ही? Okay, the activity diagram can be used to portray the business process and a workflow for it. Okay, what is that? In this case, we had to understand the model by graphically. Okay, we have to understand the workflow in a graphical manner. Okay, how the different activities flow from one end to another end, you can get it. Okay, कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के साथ कैसे फ्लो हो रही है। ओके, यहाँ पे फंक्शनलिटी की इंफॉर्मेशन, उसके एल्गोरिदम हम वो भी जानने की कोशिश कर पा रहे हैं। ओके, बिजनेस केस और बिजनेस प्रोसेस, उसका वर्कफ्लो कैसे बराबर होकर वो देखते हैं। डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, मतलब डायनामिक बिहेवियर, एंड वक्त पे कुछ चेंजेस या फिर डायनामिकली हम चेंज कर रहे हैं, वो हमें जानने की कोशिश कर सकते हैं। टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक, हाई लेवल से लो लेवल तक का
फ्लो चार्ट या फिर कंप्लीट diagrammable representation of it. Okay, then we have to capture the particular dynamic behavior of the system. मतलब कुछ चीजें हमें, वैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि हमारे सिस्टम में कितने 21 साल के ऊपर की उम्र के बच्चे हैं, हमारे कस्टमर कितने हैं, है ना, ये हम कुछ क्वेरी फायर कर रहे हैं. दैट इज ऑल डिफरेंट डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम कैन बी जनरेटेड. Okay, so we should have that condition and all. Okay, so we have to understand the flow from one end to another. Different activities are there, and we have to understand how top level to bottom level and high level to low level kind of distribution of the system is going to happen. Okay, so ये अलग अलग तरीके हैं, इसलिए हम we are using this activity diagram. Okay, ये एक एग्जांपल हम देख रहे हैं एक्टिविटी डायग्राम का. ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल है, जैसे हमारा ईमेल होता है, email kind of things. What our system start with this field circle, that is start or initial state of it. Then this is one of the activity where I am going to open a mail. How I am going to open a mail? I am going to enter a valid email ID and valid password. I am going to click on that login button and I am going to enter it. So I get it a welcome window from with my name, and my mail is get open. Okay, so here what I get it, decision node is there. Okay, two decision node is there. One is important mail, I'm going to read that, and one is a junk mail. Okay, some advertisement kind of things, some bulk mails and junk mail we get it. Okay, so in this case the two activities I'm going to perform. Okay, first is I'm going to log in it, these activities which open my mail. This is one of my activity. Here to decision, here I have to get a decision for it. First of all, which are the important mails for it. अगर आप जैसे आप ईमेल देखते हो, आप देखेंगे आपके ऑफिशियल ईमेल होते हैं, फिर या फिर आपके पास होते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ईमेल. ओके, तो पहली बात तो उस जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट उसे आप रीड करते हो, यू रीड दैट मेल. ओके, and without reading some mails you can delete that mail because you know it is a advertisement kind of purpose mail and you don't want it in further future reference for it, so you delete a mail. Okay, on that basis what is, you are going to end your session kind of. That means you are reading the mail or you are going to reply that mail. That is another aspects for it, another activity related to it. But if you, once you delete a mail, you are going to read another mail. That's okay. Okay, so you are going to merge it, and after that completing the reading of your mail and sending their acknowledgement reply to them, you are going to what? You are going to log out from the system. Okay, what is that? In above diagram, three activities are specified. When the mail is checking, going to be there. If mail is important, you are going to check that mail, and if it is junk, you are going to delete that mail. So you are going to have a conditions like it is essential mail, and another one is not essential mail. That means the junk mail. Okay, so different three activities we are going to look at. First is opening the mail, then reading the mail, and that deleting the mail, and last one I'm going to log out. Here the decision is happening because you know it, which is important mail for you and which is not important mail for you. Okay, because know it, yeah, this is advertisement kind of purpose mail you received it. Okay, वो बोलते हैं ना कि जैसे यहाँ पे आपको घर चाहिए क्या, आपको फिर होम लोन चाहिए क्या, बहुत सारे ईमेल आपको मिल जाते हैं. कभी कभी वो बल्क के हिसाब से जो मेल आते हैं तो रैंडमली किसी को भी भेजते हैं. जैसे यू विन अ लॉटरी, आप बहुत पैसे जीत गया, भैया मैंने लॉटरी खरीदी नहीं तो मैं कैसे जीत गया, मुझे पता नहीं तो भाई कैसे हो रहा है. तो दैट काइंड ऑफ ऑल जंक मेल्स. ओके, so different activities. This is a simple diagram related to activity diagram. अब यहाँ पे आप देखोगे डिसीजन मिल लिया था, यहाँ पे आप देखोगे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे आप फॉर्क भी हो रहा है, लेकिन हम सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है. सिर्फ लेस देन 1 minute remain. Okay, just less than 1 minute remain. Is anyone having a doubt? We are going to continue this session on the next week as of this activity diagram is concerned. You like this or do you understand this session? Get it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yeah, sure. Thank you. Should I stop it or sharing for a moment?